Now we are reading this book of Ecclesiastes last few weeks. हम पिछले सप्ताह से ये सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। This book of Ecclesiastes written by Solomon, a wise king. इस पुस्तक को सुलेमान जो बुद्धिमान राजा के द्वारा लिखा गया है। He has learned many things. He has experienced many things. So all these things he has written in this book so that we may learn. उन्होंने बहुत से बातों को सीखा है और बहुत से बातों को अनुभव किया है और इस पुस्तक में लिख दिया है जिसके द्वारा से हम भी उसमें से सीखें। He spent time, talent, treasure and so much and written these few words for future generation like us. तो उनके जीवन में जो भी सुख अनुभव, धन संपत्ति जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है और उसके अनुभव को उसने इसे लिख दिया है कि हमारे जीवन में इस और पीढ़ी के लोगों के लिए हमारे लिए एक लाभ का कारण हो। His messages and his experiences are very important for any human being. उनके जो संदेश है और उनके जो कुछ अनुभव है और मनुष्य जाति के लिए बहुत ही लाभपूर्ण है। That is the reason why this book of Ecclesiastes has got much spiritual treasure, spiritual wealth. और इस सबोपदेशक के पुस्तक में से आत्मिक और वो संपत्ति इसमें जो है रखा हुआ है। Not only we should learn from his messages, but also we should apply in our lives. न केवल इस पुस्तक के बातों को हम सीखना है पर हमारे जीवन में उन्हें लागू करना है। Last 2 weeks we read about chapter 5. When you go to house of God, he was talking about house of God, importance of house of God. तो हम पिछले 2 सप्ताह से परमेश्वर के भवन के बारे में हम देखा है ना कि उसके भवन में जाना है और उसके भवन के जा करके जो अनुभव है हमें जो है सीखने के लिए बारे में बताया है। And then when we come to chapter 6, अभी जो हम 6 अध्याय में आए हैं, in the chapter 6 he says there are 3 evil, duravastha, evil common for every man, 3 evils. तो इस 6 अध्याय में 3 बुराइयां जो मानव जाति में हैं और वो बताई गई है। Chapter 6 verse 1, there is an evil which I have seen under the sun and it is common among men. Common, it is everywhere, common. तो ये जो पहला पद में एक बुराई जो मैंने पृथ्वी पर देखी है वह सारे मनुष्यों में भारी, बहुत भारी है। In English, a word evil used, in Telugu duravastha and in Hindi क्या हिंदी में बुराई है। बुराई, yeah. This is burai, duravastha. It is there. Common means everybody commit this mistake. तो ये बुराई जो है कि हर एक मनुष्य के जीवन से होती है। And if we are wise enough, we can escape from this evil. अगर हम बुद्धिमान हैं तो इस बुराई से बच सकते हैं। What is this evil? He writes verse 2, God made man, gave him riches, honor and wealth. God gives to his children. God gives. We may not be millionaire, but God gives to us. Verse 6, chapter 6 verse 2. तो इसके 6 अध्याय के 2 पद में बुराई क्या है कि परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है, ये एक बुराई है। So we may not be all rich, but God gives what we need. He says He gives riches, He gives honor, and He gives wealth. He gives. परमेश्वर हमको आदर देता है, परमेश्वर हमको धन संपत्ति देता है और हमें जो है महिमा देता है, वो परमेश्वर देता है। So man toils
do hard work to get this riches, honor, wealth, but in the end, he says he won't be able to eat that food. His riches he won't be able to eat. तो क्यों यहाँ पर इतना तक प्रभु उसको धन संपत्ति प्रतिष्ठा देता है और आखिर में उसको जो है उसको उपभोग नहीं कर पाता मनुष्य। Verse 2 he says some stranger will eat after him, either children, grandchildren or somebody he doesn't eat, and his followers will eat. He says strangers will eat. तो वो उस धन का उपभोग नहीं कर पाता है, उसके पीछे रह जाते हैं बच्चे हों या नाती पोते हों जो अनजान हैं, अनजान लोग हैं, उसको उपभोग करते हैं। He spends time, he spends talent, he spends treasure at the cost of God's house and neglecting God's house. He spends all these things. He won't eat, but somebody will eat. This is an evil, he says, evil. ये एक बुराई है। कहता है कि जो कुछ भी वो समय को बर्बाद करता, समय को और अपने धन संपत्ति को कमाता है और वो सारे कामों को करते हुए अपने प्रभु के भवन को, घर को छोड़ देता है और इस तरह से वो कमाता है, लेकिन ये जो है उसका उपभोग नहीं कर पाता। ये भी एक बुराई है, व्यर्थ बात है। Those who earn riches, honor, wealth, they will do only when they neglect God's house and concentrate upon this world, and finally they won't eat, somebody else will eat. तो वो जो अपना और धन और आदर प्रतिष्ठा और जो कुछ उसने जो कि स्वास्थ्य को रखा है, ये सारा जो सुख सुविधा है वो कमाता है, परंतु उसको वो नहीं उपभोग कर पाता है और प्रभु का घर को छोड़ देता है और उसके बाद दूसरे लोग उसका उपभोग करते हैं। वर्स 2 में लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज इविल डिसीज, इट इज ए डिसीज, रोगम। तो ये लिखा है दुख लिखा, ये भयानक रोग है लिखा है इंग्लिश में। What it means is, now we can earn, but if you are not enjoying what you earn, why you should earn this? Why for somebody else we have to earn? तो हम जब इसको आनंदित नहीं होता है, उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं, परंतु हम इसको व्यर्थ में क्यों उसको हम जो है कि कमाते हैं। भाई का लगता है फोन आया है।
यस अंकल। Hello. Yes, uncle. Yes. Sorry, there is a disturbance. Okay. No, not कोई my फोन I could not stop it. ठीक है ना, अभी कंटिन्यू करेंगे. हाँ, करिए अंकल, कंटिन्यू. I'm sorry for a disturbance. Now, King Solomon is telling that human beings are foolish people. They spend their time, talent and treasure in the things that they don't enjoy. तो सुलेमान लिखता है कि मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण और वो अपना और धन में और अपना शरीर के स्वास्थ्य में लगाता है, लेकिन उसका आनंद उपभोग नहीं कर पाता है. They earn money, they earn name, fame, wealth, but they won't eat. That is the evil. That is what evil, common evil. Somebody else will eat. They are foolish people. Instead of doing God's work, they do their own work. That is what he means. इसका जो मतलब है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य अपना और पैसा कमाई करता है, नाम, महिमा और धन संपत्ति प्राप्त करता है, लेकिन उसका वो उपभोग नहीं कर पाता है. ये एक बहुत बड़ी बुराई है मानव जाति में. So the first message Solomon giving to us is, the life is very, very precious. Don't invest life in earning riches, honor, wealth, but invest life in the work of God. तो पहला संदेश ये हमें मिला है कि हमारा जो समय है और हमारा जो समय को व्यर्थ में, धन संपत्ति में और नाम महिमा में जो हम खोज में लगाते हैं, उससे हमें कुछ लाभ नहीं है. इसीलिए हमें प्रभु का और कामों में अपना समय को लगाना है. We all know we don't carry anything while we are going from here, but still we invest all our time, talent and treasure in the things which we are not carrying with us. तो हम ये सब बातों को जानते हैं, फिर भी हम अपने समय को और उन बातों में लगाते हैं, धन संपत्ति में, जो हम उसको साथ में नहीं ले जा सकते, ऐसे समय को हम लगाते हैं. And this mistake is done by everybody. It is a common mistake by everybody. ये गलती प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है. We know Revelation chapter 14 verse 13, our deeds will follow us when we go back from this world. Our deeds will follow. Revelation 14:13. प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 पद में वहाँ लिखा, हम जानते हैं कि हमारे काम हमारे साथ हो लेंगे. This corona has come and it has taken rich people, great people, God's servants, poor people. Corona has taken them in 3-4 days time. Without any warning, they all left this world. तो यहाँ पर करुणा महामारी जो है 3-4 दिनों के भीतर में ही और बिना सूचना दिए ही हर एक मनुष्य को, धनी व्यक्ति को, महान व्यक्ति को, प्रभु के दासों को और गरीब लोगों को, बहुत से लोगों को, और 2-3 दिन के भीतर में ही और बहुत लोगों को ले गया है. Knowingly we all commit this mistake and invest our energy, time, talent in the things which we are not carrying with us. हम ये सारी बातों को जानते हुए भी हम अपने और जो कुछ भी
हमें जो है कि गुण स्वभाव दिया है, और जो कुछ भी हमारे काम धाम हम करते हुए और बिना हमें जो है कि इन सारी वस्तुओं के पीछे हम लगे रहते जो नहीं ले जा सकते हैं। We know while Apostle Paul writing to Timothy, he wrote in 2 Timothy chapter 4, हम जानते हैं पौलुस प्रेरित और दूसरा तिमोथी में और लिखता है chapter 4 verse 7. उसके 4 अध्याय का 2 Timothy 4:7. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 7 पद। We know this verse. I have fought a good fight and I have protected my faith. And now I am going back to my heavenly Father. तो कहता लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है और मैं जा रहा हूँ। After receiving the vision on the way to Damascus, Apostle Paul, he left the whole world, every work, and he pursued God's work. तो उस दौड़ में जाने से पहले वो दमिश्क के रास्ते पर और इस संसार के सारी बातों को और जाने के बाद जो है कि सारे संसार को उसने छोड़ दिया है। God has not asked him to leave every work and come for full-time service, but he has volunteered. He volunteered. No, I don't want to work for God, for the world. I want to work for God. He has taken decision. तो प्रियो, परमेश्वर ने उससे पूछा नहीं है कि तुम पूरा समय सेवा करो, लेकिन अपने स्वेच्छा से उसने कहा कि नहीं, मैं मेरा प्रभु के लिए मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को मैं सौंप करके मैं संसार को छोड़ के प्रभु की सेवा में करूंगा। Apostle Paul is the best example that he has not toiled for this world, but he toiled for the work of God. तो जो एक अद्भुत उदाहरण पौलुस प्रेरित के को हम देखते हैं, उसने और संसार को नहीं परंतु प्रभु को उसने स्थान दिया है। End of the life, he could boldly tell Timothy, I have finished my work, and now I am going. All my deeds, all my works will follow me. और जीवन के अंतिम समय में वो तिमोथी को कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूँ, मैंने अच्छी कुश्ती रख चुका हूँ, लड़ लिया है और विश्वास की रखवाली किया है। He never had any house, he never had any bank balance, he never had any car, he never had anything, any vehicle, nothing on his own. Everything, he is a mobile. He goes from place to place. Maybe he was having some 3-4 pairs of clothes. That's all. Nothing he had. तो उसके पास कुछ नहीं है, चाहे वो अपना कार हो, घर हो या और उसके जो कपड़े हैं 3-4 प्रकार के, उन सब को छोड़ करके और उसको जो है कि जाना है। To make his life more comfortable, he is not even married. और उसका जो और शादी भी नहीं किया है और उसने अपना जीवन को अच्छा भी नहीं बिताया है। He has invested his whole life in the work of God. Very, very wise person. Very, very wise person. बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति और अपना सारा जीवन को प्रभु के लिए और दे दिया है। I am not that much wise. I got into these affairs of this world, job, marriage, children. Though they are all a blessing, but they takes more time and we rob God's time. तो हम उसके जैसा बुद्धिमान नहीं है और हम जो है, मेरे पास जो है कि बाल बच्चे हैं, पत्नी है और प्रभु ने जो आशीष दिया है, परंतु वो सब जो है कि व्यर्थ है और ये सब प्रभु का समय को चुराता है। That is what Solomon says. Be wise enough. Don't waste your time, talent, energy in this world. Nothing you will carry. Be wise like Apostle Paul. और यहाँ पर सुलेमान क्या कहता है, वो कहता है कि ये और बुद्धिमान बनो और ये सारी वस्तुओं से निकलो और पौलुस के समान बुद्धिमान बनो। Think of Brother Buxing, another great man of God, Brother Buxing. दूसरा व्यक्ति है जो बुद्धिमान व्यक्ति भाई बक्सिंग है। He studied in foreign country. 2 engineering degrees he was having those days.
और उन दिनों में 2 डबल इंजीनियर किए थे और इंग्लैंड देश में पढ़ाई किए रहे। He would have earned lot of money, name, fame if he stayed back and worked in that country. और इस देश में आए रहते तो उनका नाम, महिमा और बहुत कुछ वो कमा सकते थे। The moment he was born again, God told him, "My son, you are my son. You work in my vineyard. Don't work in this world for the government and other things." तो क्यों जब प्रभु ने उनको नया जन्म दिया और प्रभु ने कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरे दाख की बारी में काम करेगा और इस सरकार का नौकरी नहीं करेगा, तू मेरे दाख की बारी में काम करना है। We are very much aware he left everything and surrendered to God, and he was very very wise man, servant of God. और इस रीति से बड़ी सावधानी और आज्ञाकारिता से उसने सब कुछ को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिया है। For accepting Jesus Christ, his parents thrown him out of house. और प्रभु को ग्रहण करने पर वो प्रभु के घर में अपने घर से आया। And his wife also deserted him, left him. और उनका पत्नी भी जो है और उनसे चली गई, अलग हो गई। You imagine when parents are not receiving us, your wife is not receiving us, well, how a man can live? But he understood the eternal life of eternity is all temporal, but I want to gain eternal things. और जबकि उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उन्हें छोड़ दिए, तो कैसे संसार में जीवन वो बिता सकता है? परंतु उसने जो है कि अनंत कालिक बातों को कमा और लाभ के लिए उसने जो है उनको छोड़ दिया है। When he left this world from Hyderabad, Hebron, he didn't have any bank account, he didn't have any house, he didn't have any vehicle, and he just went without anything. He went, his works followed him. और जब उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया हैदराबाद में, यहाँ आने पर, और उनके पास कुछ भी नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था उनका, और खाली हाथ में वो आया था। In his room, if you will find some Bible, some books and some clothes. Nothing else will be there. और उनके आप रूम में जाएंगे हैदराबाद में, केवल बाइबल को छोड़ करके और किसी वस्तु को नहीं पाएंगे। A few clothes. और थोड़े से उनके कपड़े होंगे। And he has understood, he has been proved that he was a very, very wise man. He invested his whole life in the work of God. हम इस बात से पाते हैं कि वो बहुत ही और दीन और बहुत ही जो है कि बुद्धिमान व्यक्ति संसार में थे। I am not telling leave your wife or husband or house. While we are in the secular world, we can put more efforts in spiritual matters than worldly matters. So हम ये नहीं कहते कि अपने पति को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, परंतु आप इस सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा जो है प्रभु के आत्मिक बातों पर बढ़ने पाए। So this is a very good warning. Solomon is giving to me, to all of us. Your life is only one time. Invest it properly in the work of God. तो इस तरह से सुलेमान कहता है कि हमें बहुत ही और चेतावनी देता है, बताता है कि हम बहुत ही और सावधानी से और बुद्धिमानी के साथ हमारे जीवन को और उन सारी वस्तुओं पर लगा सकते हैं। Now we'll go to second thought in this chapter 6. दूसरा विचार इस सबोपदेशक 6 अध्याय से verse 3 chapter 6 verse 3 पढ़िए। उसके 6 अध्याय के 3 पद। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए,
तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। Another evil, common evil, he says, get married, beget children, and be happy, get children, grandchildren, and have long life. This is another snare. This is another temptation. Get married, get children, get all these things. That is what world is offering to us. तो प्रियो, यहाँ पर दूसरा जो बुराई है, शादी ब्याह करके बाल बच्चों को, नाती पोतों को जन्म दे करके और उनका आनंद उठाना, परंतु ये भी जो है दूसरी और बड़ी बुराई है। He is telling that imagine that one man begat 100 children. Suppose somebody got 100 children. तो वो कहता है यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति के 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र को जन्म दिया है। Is it possible to have 100 children? 100 children? क्या यह संभव हो सकता है 100 बच्चा? Sometime back I saw the net in India, in Mizoram, one man has 40 women and 40 wives and 126 children. 126 children. तो आसाम में, हमारा भारत में, एक व्यक्ति के 40 पत्नियां हैं और 126 बच्चे हैं। हमने in our India, in Mizoram, one man has 40 wives and about 126 children. हाँ, तो मिजोरम में एक व्यक्ति ने और 45 पत्नियां और 126 बच्चे। He is still living. He is जिंदा है. He is still living. हाँ, वो अभी तक जिंदा है। The whole world, this is the record. One man has 40 wives in these days and 126 children. तो ये पूरा विश्व में एक रिकॉर्ड है कि 40 पत्नियां और 126 बच्चे हैं। Solomon is telling, assume that you have, when somebody got 100 children and long life, many years he lived. Finally, what happens when he dies? Nobody attends his funeral. तो वहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में उसने, सुलेमान ने लिखा है कि किसी व्यक्ति के 100 पुत्र हैं और बहुत वर्ष जीवित रहा और उसकी आयु बढ़ गया, परंतु जब अंतिम क्रिया हुआ फ्यूनरल का टाइम में, एक भी और बेटा उनका जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ है। As per the expectation for his funeral, all these wives, all these children, so many relatives, hundreds and thousands should attend. But Solomon says his life will be miserable and no one will attend his funeral. तो इस तरह से हम लोग जो वो उस बात के लिए और चाह रहा है कि अंतिम क्रिया में और बहुत उनके पत्नी और बच्चे हों, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि उसके पर एक बच्चा भी नहीं होने के कारण ये बहुत ही बड़ी दुखदाई और बुराई वाली बात है। Not that they didn't like him, they are his children, but the situation might have come like a corona. Even when somebody dies now, nobody goes. पर ये एक प्रकार की एक परिस्थिति है और कोई बेटा नहीं चाहता है, परंतु एक करुणा के समान इस परिस्थिति में कोई भी उसके पास एक मिट्टी देने नहीं जा पा रहा है। How God has allowed this corona today, even big people, when they die, only 10 people, 15 people attend. Otherwise, hundreds and thousands would have attended his funeral. But finally, they attend only 15-20 people maximum. और परमेश्वर ने कैसे किस रीति से इस करुणा महामारी को और आने के लिए उसको अलाउ कर दिया है। बड़े बड़े लोग चले जा रहे हैं, लेकिन उनके और बरियल में मिट्टी में 10 से 15 लोग और ही आ पा रहे हैं, जबकि 100,000 लोग आने वाले ऐसे स्थान में केवल इतने थोड़े लोग आते हैं। Solomon is not telling don't get married, don't get children, and don't live long life. He says do it, but end is very miserable. End is very miserable. सुलेमान नहीं कह रहा है कि शादी मत करो, बच्चे मत करो, लेकिन और यहाँ पर ये एक परिस्थिति है कि एक
उसके समय में कोई भी अगर सामने नहीं आया तो बहुत ही एक बड़ी बुरी बात है, ये बड़ा ही दुखदाई बात है। Actually, when somebody dies, his funeral is very, very important. Many attend, many talk about him, and it will be a very good, memorable. But finally, this man, his funeral was very bad. Nobody attends, and he think then the life will be what he lived is all waste of time. तो यहाँ पर सुलेमान इस रीति से कहता है कि जब भी जो कि कोई प्रभु में चला जाता है, कोई इस संसार से चला जाता है, काफी लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बारे में तमाम बातें, भलाई की बातें उनको याद करके किया जाता है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई भी ना रहे तो कितना ही एक बड़ा दुखदाई बात है, इस बात को प्रकट कर रहा है। What Solomon says, be wise enough and invest your time, talent and treasure in the work of God. Don't be foolish in having wives, children, name, fame, long life. What is nothing? When you die, nothing will come. You have to go alone. तो यहाँ सुलेमान क्या कहना चाहता है कि आप बुद्धिमान बनो और आप बुद्धिमान हो, प्रभु के कामों को करते रहो, इस संसार के नाम, महिमा और अन्य बातों की खोज में ना रहो जो और उसमें कुछ लाभ नहीं है। Chapter 6 verse 4 and verse 5 पढ़िए, 4 and 5। उसके 6 अध्याय 4 और 5। क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया और ना सूर्य को देखा ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। अंधेरे में his life has gone into darkness. All these things has become darkness. तो उसका जो जीवन है अंधकार में चला गया है। That is number 2. दूसरी बात है, दूसरी point। और दूसरा बात है, हाँ। Now in the same chapter we have another point, another thought, verse 3 and the third part is chapter 6 verse 12। और तीसरा विचार है यहाँ पर 10 पद में, 12 पद में, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। He says man's life is like a shadow and everything is vain। और वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है और उसका जीवन जो है परछाई के समान है। With all concern, with much burden, Solomon writes to every human being, to me and to all of us, saying that after your death, only result will come, but there is no use of repenting when we die. When we have life, we have to think of all the what is valuable. We have to think. तो सारा बातों को मिला करके सुलेमान यहाँ पर क्या कहता है कि हमारा जीवन जो है सब बातों को जो निचोड़ करके जो कुछ भी भली बातें हैं उसका बारे में वो बातें करता है। He is asking a question. He is ending this verse with a question. वो इस अंतिम पद को और प्रश्न के साथ समाप्त करता है। Chapter verse 11 there is a question. Verse 12 there are 2 questions. This chapter ends with 3 questions. और इस अध्याय के आखिरी में 3 प्रश्न जो है और के साथ समाप्त होता है। Verse 11 में he says, what is man the better? What is best for man? How can you can't understand? There is a question mark. What is best for man? What is best for man? तो यहाँ पर और 11 पद में लिखता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ है बोल के प्रश्नवाचक है। We think study, getting job and marry, children, house, so many things. They're all best for man. What we think, this is what every man, common problem, common disease, common duravastha is that this is what we do.
they don't know what is best for man. तो वो मनुष्य जो है पढ़ता है, नौकरी की तलाश करता है, नौकरी पाता है, घर के लिए कोशिश करता है और बहुत बातें करता है, पर उसका मनुष्य के जीवन में इन सब बातों में क्या लाभ है बोल के प्रश्न है। Verse 12 में another question, man life is vain and it is like a shadow is not a shadow, is question mark. ये एक प्रश्नवाचक 12 पद में है। मनुष्य का क्षणिक व्यर्थ जीवन है, परछाई के समान बिताता है और उसके लिए अच्छा क्या है, ये प्रश्नवाचक है। थर्ड प्रश्न, for who can tell a man what shall be after him under the sun? Who can tell man? Who, even you tell, man won't listen, man won't hear, then won't obey. तो वहां पर कहता है क्योंकि कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। What Solomon says, you should know what is best in your life. What is best in your life? और सुलेमान यहाँ पर क्या कहना चाहता है हमारे जीवन में, और सबसे उत्तम क्या है। All of us, we think after born again, live a respectable life, marry, earn this, earn that, children, grandchildren, and die. That is what we feel best for us. तो हम लोग नया जन्म पाते हैं, अच्छा जीवन बिताते हैं और सब कुछ प्राप्त करते हैं, अब बाल बच्चे सब कुछ हो जाते हैं। इन सब बातों के बाद अच्छा क्या है, इस बात को कहता है। They are all okay, they are good, they are best, but while we are having this, most of the life you spend for things eternal or spiritual or work of God. That is what Solomon is trying to tell us. सुलेमान ये कहना चाहता है कि ओ सब कुछ काम किया और सब कुछ करने के बाद अच्छा क्या है, वो जो है आत्मिक बातें, प्रभु की बातों को करना ये अच्छा है। Solomon says, "Oh man, you have liberty, do whatever you want, but everything God will bring into judgment." He says, last chapter, last verse, that is chapter 12 verse 14. Chapter 12 verse 14. और ये उपदेशक 12 अध्याय का 14 पद में और कहता है सुलेमान, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा, ऐसा कहता है। Dear brothers and sisters, these days of COVID, this message are more valuable, more meaningful to all of us. प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में जो कोरोना महामारी के दिनों में ये सारे संदेश हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही लागू होने वाली है। People are dying, many dying day by day. Many healthy people, young people, God servants. What is life? What is life? What is life? What are we carrying when we are going back? तो यहाँ पर हर दिन और दिन में, हर एक दिन में प्रभु के दास हो, बड़े लोग हों, हर दिन बड़े से ज्यादा लोग और चले जा रहे हैं। ये उस बात को सोचने वाली है कि हम यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं। What Solomon is telling, be wise person, invest your time, talent, treasure in eternal things, spiritual things. और यहाँ पर सुलेमान कहता है कि बुद्धिमान बनो और बुद्धिमान होकर के अनंतकालिक धन को, अनंतकालिक बातों पर और लेकर के जाने के लिए। In the Bible, apart from Apostle Paul and apart from Bhakt Singh, we find another person, King David, who has invested his time in the work of God, house of God. और इस संसार में अब भाई पौलुस प्रेरित, भाई भक्त सिंह अंकल और डेविड भी अपने बहुमूल्य समय को, प्रभु के दास और दाऊद महाराज भी, और उसने अपने समय को प्रभु के लिए दिया है। As you are aware, he was a king, had so many responsibilities, family responsibility, kingdom responsibility, but he was holding the responsibility in the work of God, in the house of God. जबकि सुलेमान दाऊद राजा होते हुए भी और उसने राज का जिम्मेवारी उठाते हुए भी बहुत समय को वहां पर और बिजी रहते हुए भी
उसने प्रभु के लिए, प्रभु का घर के लिए, प्रभु के स्थान देने के लिए अपने समय को उसने खर्च किया है। David has been a very good example to to all of us. और दाऊद हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। He says, Psalm 26 verse 8, I love the house of God so much. Psalm 26 verse 8, पढ़िए, Psalm 26 verse 8. भजन संहिता 126 अध्याय और 8 पद में कहता है कि, और प्रभु का घर के बारे में कहता है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। 26 verse 8, sorry 26 verse 8. हाँ, भजन संहिता 26 अध्याय 8 वचन। भजन संहिता 26 अध्याय 8। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। Being a king, his all his mind, his all his heart was on the house of God. और राजा होकर के भी पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु के महिमा के निवास स्थान से वो प्रीति रखता है। The message today for me, for all of us is, while we are having responsibilities in this world, but hold responsibilities of God's house, God's work. That is very important. Whether we are full-time servants, believers, whatever it is, hold responsible in the work of God, in the house of God. तो हमारे लिए एक शिक्षा है कि संसार में हम होते हुए भी, और हम चाहे विश्वासी हो, चाहे प्रभु के दास हो, चाहे विश्वासी हो, प्रभु का कामों के लिए, प्रभु के घर के लिए, और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है। So there are 3 thoughts came out in this chapter 6. और ये 6 अध्याय में 3 विचार प्रभु ने दिया है। These 3 are common evil for every man. That is what? Common evil for every man. और 3 बुराई जो सारे मनुष्यों में और दिखाई देती है, ये 3 बातें हैं। But we are asked to be wise enough and escape this evil so that our lives are blessed in this world. तो इन सारे बुराइयों से बचने के लिए और बुद्धिमानी में रह करके इस पृथ्वी पर हमें रहने के लिए प्रभु कहता है। May the Lord bless this simple message for you, for me, and for all of us. तो प्रभु इन विचारों को मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबों के लिए आशीष का कारण करे। थैंक यू। दुआ करिए। यस, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जीवित और सच्चे विश्वासयोग्य परमेश्वर, धन्यवाद और आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए। महान पिता परमेश्वर, जो आपने 6 अध्याय में हमसे बातें किया, तब उपदेश 6 अध्याय में जो 3 बुराइयां इस पृथ्वी पर, धरती के नीचे है, और उसके 2 और 3 पद, अदयालु प्रभु, और 4 वचन और 5 वचन और 12-11 पद हमसे आपने बातें किया किस तरह से कि इस संसार में धन, प्रतिष्ठा, समय को और में अपना बर्बाद करके दयालु प्रभु महिमा को पाने के लिए, लेकिन एक बड़ा दुख है, रोग है मनुष्य के जीवन में कि उसको घटी ही होती है। और जब बच्चे को भी जन्माया जाता है, लेकिन वो काम क्रिया में भी प्यार बहुत शामिल नहीं होता, ये भी एक बड़ा दुख है। दयालु पिता परमेश्वर, और 11 और 12 पद में भी एक 3 और जगह से आपने जो विचार दिया, धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर, ये क्षणिक व्यर्थ जीवन में मनुष्य को क्या लाभ है? जो कुछ भी हो, क्या वो जी पढ़ाई कर रहा है, चाहे उसके लिए नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है, और अच्छा जीवन और अच्छा पत्नी और पति को पाने के लिए, या और घर बनाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, परंतु आप जब कुछ भी लाभ नहीं है। आखिर के आपने उदाहरण से हमसे बातें किया। पौलुस बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, प्यारे पिताजी, वो बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान था प्यारे प्रभु, उसने सब कुछ छोड़ दिया
प्रभु के दास भाई भक्त सिंह बहुत बुद्धिमान थे प्यारे प्रभु परमेश्वर, और उसने अपना जीवन को संसारिक पदार्थिक वस्तुओं को छोड़ करके केवल प्रभु में बुद्धिमानी से उसने जीवन व्यतीत किया है। धन्यवाद देते हैं महान पिता। और भी प्रभु पिता परमेश्वर दाऊद का उदाहरण दिया, और इन सब बातों से सुलेमान प्रभु जी हमें शिक्षा दिया है कि हमारे सारे और जीवन भर में जो कुछ भी हम करते हैं प्यारे प्रभु स्वर्गीय बातों के लिए और प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के घर के कामों के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, जो प्रभु के प्रति प्रेम है, जो प्रभु के घर के प्रति समर्पण है, जो कुछ भी हमारे प्रभु के लिए है उसको हम दे करके और प्रभु से प्रीति करके हम प्यारे प्रभु जी और अपने साथ हम अनंतकालिक बातों को ले जा सके। जब एक समय आएगा इस महामारी के दिनों में हे पिता परमेश्वर कितने लोग प्रभु जी हर एक दिन 5, 10, 15 प्रभु के दास लोग भी और चले जा रहे हैं प्यारे प्रभु, और हमें सुनने को मिल रहा है प्यारे प्रभु जी। ऐसे समय में हम जब प्रभु के पास जाएंगे खड़ा होंगे तो हमारे हाथ में क्या है, और वो बात जब वो प्रभु जी आप देंगे प्रतिफल हम कहाँ रहेंगे, क्या पाएंगे। इस डर से प्रभु जी भय भक्ति के साथ प्रभु में चलने के लिए, प्रभु में खर्च होने के लिए, प्रभु में समर्पित होने के लिए, प्रभु के कामों में हमें प्रभु जी और खोज में लगे रहने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय दास के लिए जो इन दिनों में बाइबल अध्ययन के द्वारा आपने हमें स्वर्गीय भेदों को खोला है और हमारे जीवन के माने मतलब को प्यारे प्रभु वर्तमान दिनों में कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, इस सब दिखा। धन्यवाद देते हरेक को आशीष दे, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, जितने भाई बहन सुने हैं हरेक से आप बातें की हैं, धन्यवाद देते हैं। न केवल सुनने वाले परंतु उसके अनुसार हमारा जीवन हो सके, हमारी आप सहायता कर दीजिए। हरेक से आप बातें किया, धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, संगति के लिए, सारी बातों में आपका नाम की महिमा हो। प्रार्थना धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में सुने ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का